Hello everyone, welcome back to my channel Study with Neha Mawa. So today I'm going to tell you about or I'm going to start with the Constitution of India that is a very most wanted topic by the students. So this is the topic I'm going to start and it is all related to the Constitution of India. We will study step by step related to the Constitution of India. So let's get started. So first of all, Constitution of India. What is Constitution of India? Constitution of India generally talks about Samvidhan, which is in Hindi called Samvidhan of India. Means the Constitution of India is the supreme law of India. Now the India country or the India is generally run on the basis of the Constitution of India or on the provisions of the Constitution of India. So Constitution of India is a supreme law of India. It frames fundamental political principle, procedures and practices, rights, powers and duties of the government. So generally, as we know that we have the parliamentary form of the government, so we have the government in our country who constitutes our India, who constitutes the working of the India. So the in Constitution of India generally we have different powers, rights, duties of the government that has been assigned to them, that has been given to them in one way or the another. It impart constitutional supremacy and not preliminary or parliamentary supremacy as it is not created by the parliament. So अगर मैं आपको सिर्फ हिंदी लैंग्वेज में भी बताऊं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो होता है ये इंडिया के लिए बनाया जाता है. इंडिया में जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट अपॉइंट करी गई है, उनकी वर्किंग्स किस तरीके से होनी चाहिए, उनके राइट्स क्या होने चाहिए, उनकी ड्यूटीज क्या होनी चाहिए, उनकी पावर्स क्या होने चाहिए, वो सब कौन असाइन करता है, आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में गवर्न है. इवन द राइट्स, ड्यूटीज और द पावर्स ऑफ द और फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजंस आल्सो इज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. इट इम्पार्ट कॉन्स्टिट्यूशनल सुपरमेसी एंड नॉट पार्लियामेंट्री सुपरमेसी as it is not created by the parliament but by a constituent assembly and adopted by its people with a declaration in its preamble. Parliament cannot override it. Constitution में जो भी लिखा है that is binding on all. Parliamentary उसको override नहीं कर सकती, उसको challenge नहीं कर सकती in any grounds. Then we have जो Constitution of India है, ये हमारा वर्ल्ड का longest constitution है और ये written constitution है जिसमें 395 articles हैं, 22 part है and 8 schedule है. It consists of approximately 1,45,000 words और ये written form में है, making it the second largest active constitution in the world. अब currently it has a preamble जो 25 part का है, जिसमें 12 schedules है, 5 appendices हैं, 448 article and 101 amendment है. So ये जो था ये just एक constitution of India का introductory part था. Next में जो आता है वो हमारा आता है history part कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की हिस्ट्री क्या थी. जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर इन द ईयर 1949. सबसे पहले जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, जो ब्रिटिश रूल था हमारी कंट्री में, आफ्टर दैट वी गॉट इंडिपेंडेंट, तो उसके बाद जो है हमने 26 नवंबर 1949 को अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया बिकॉज देयर वाज अ नीड कि हम लोगों को, इंडिया को भी अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन अलग से चाहिए जिसमें पहले से ही ऑलरेडी प्री डिफाइंड हो राइट्स, ड्यूटीज, लाइबिलिटीज ऑफ द government as well as the citizens in order to regulate the country. Then we have it came to effect on 26 January 1950. क्वेश्चन आ जाता है कि इनैक्ट कब हुआ था और केम इनटू फोर्स कब हुआ था. जनरली अडॉप्ट आपका 26 नवंबर 1949 में हुआ, बट ये आपका इफेक्ट कब में आया, 26 जनवरी 1950. तभी हम 26 जनवरी जो है एज अ रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया बनाते हैं. नाउ इट वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है, chairman of the drafting committee, is widely considered to be the architecture of the constitutions of the India. जिसमें हम बात कर रहे थे इट वॉज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बी आर अम्बेडकर. और इसमें क्या बताया कि आफ्टर द अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द यूनियन ऑफ इंडिया बिकेम द कंटेम्पररी एंड द मॉडर्न रिपब्लिक ऑफ इंडिया.
इसके बाद क्या हुआ था, जनरली वी ऑल नो द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, ऑफ कोर्स द बी आर अम्बेडकर। सो अब क्या होता है, कुछ फंडामेंटल राइट्स भी असाइन हुए होते हैं। जनरली फंडामेंटल राइट्स क्या क्या होते हैं हमारे पास, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड सिटीजन विद 6 फंडामेंटल राइट। अब ये जो फंडामेंटल राइट होते हैं ना, ये फंडामेंटल राइट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, किनके लिए, सिटीजन्स के लिए भी होते हैं और जो गवर्नमेंट है वो भी उनके लिए भी होते हैं। वी ऑल नो कि जब पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें दो होते हैं, एक तो लोकसभा होता है, एक हमारा राज्यसभा होता है। तो जो लोकसभा होते हैं उनमें अलग लोग होते हैं, राज्यसभा में अलग होता है। दोनों की वोटिंग से ही अगर कोई जो है किसी पर्सन को हमें अपॉइंट करना है, एज अ कोई डेजिग्नेशन दें, तो इन दोनों हाउस की मंजूरी होनी चाहिए। अगर बिल पास करना है तो लोकसभा में जाता है, फिर राज्यसभा में जाता है, इस तरीके से होता है। अब फंडामेंटल राइट्स जो है ये जनरली सिटीजन्स को भी दी जाती है और आपके गवर्नमेंट में जो भी लोग हैं उनको भी दी जाती है। अब होता क्या, जनरली सिटीजन्स को दी जाती है, 6 फंडामेंटल राइट्स होते हैं। ये जो राइट्स होते हैं, जैसे पहला आपका राइट टू फ्रीडम आता है, राइट टू इक्वालिटी आता है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट आता है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। रिसेंटली जो राइट टू प्रिवेसी हैज ऑल्सो बीन एडेड एज द फंडामेंटल राइट। ओके, देन वी हैव सेलियंट फीचर्स। अब जो ये आपका फंडामेंटल राइट्स है, ये जस्ट एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनेगी जिसमें आपको मैं ब्रीफ में समझाऊंगी कि फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं। अब जो नेक्स्ट हमारे पास आता है, दैट इज सेलियंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेलियंट फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ सेलियंट फीचर्स होते हैं। पहला है कि लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड, कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है बहुत ज्यादा लेंथीएस्ट है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सेक्शंस में कंप्राइज्ड है, बहुत ज्यादा आर्टिकल्स है इसके, इसके सब सेक्शन है, इसके क्लॉजेस है, इसके रूल है, इसके ऑर्डर है, इवन जो आपका राइट्स है, ड्यूटीज है, और इवन मोर ये क्या इंपॉर्टेंट है कि रिटर्न फॉर्म में है। सेकेंड आता है कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। जब हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं, मींस इसमें हमारे दो हाउसेस, सेम मैंने बताया था, लोकसभा एंड राज्यसभा। किसी भी चीज को इंट्रोड्यूस करना है, किसी भी चीज को अमेंड करना है, किसी भी पर्सन को अपॉइंट करना है, तो दोनों हाउसेस जो है उनका कंसेंट होना बहुत जरूरी है। थर्ड आता है यूनिक ब्लेंड ऑफ द फ्लेक्सिबिलिटी एंड द रिजिडिटी। होता क्या है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, ये थोड़ा बहुत रिजिड भी है और ये थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल भी है। इसमें रिजिडिटी क्या होती है कि वंस जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है, वंस whatever is written in the constitution of India, that cannot be changed until and unless there is some more kind of, or some there is much more emergency, or there is much more needed to change it. Otherwise ये रिजिड ही रहता है। और फ्लेक्सिबिलिटी में ये होता है कि जब हमें कोई चीज अमेंड करनी है, व्हेन देयर इज नीड ऑफ इट, अगर हमें कोई चीज चेंज करनी है, मींस ऑफ नेम ऑफ द स्टेट चेंज करना है, उसकी बाउंड्रीज को चेंज करना है, व्हाटसोएवर, तो उस केसेस में क्या होता है कि हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल भी है, थोड़ा बहुत रिजिड भी है। फंडामेंटल राइट्स भी ये मेंशन करता है सिटीजन्स के। इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है, मीन जो हमारी, वी ऑल नो, 2 मिनट, वी ऑल नो कि जो हमारा एपेक्स कोर्ट है वो कौन सा है, ऑफ कोर्स द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, हमें पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वो सबसे एपेक्स है ना, एपेक्स कोर्ट है, और उसके नेक्स्ट में कोई भी नहीं है। और जो उसने डिसीजन दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, ये बाइंडिंग है सब पे और ये सबको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये इंडिपेंडेंट जुडिशरी आ जाती है। इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज आते हैं। अगर सिटीजन्स को हमने फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं, तो कहीं ना कहीं उनको फंडामेंटल ड्यूटीज भी असाइन होनी चाहिए। अब फंडामेंटल ड्यूटीज कौन सी होती है, रिस्पेक्ट योर नेशनल एंथम, रिस्पेक्ट योर फ्लैग, जब भी नेशनल एंथम होता है, डू स्टैंड एंड शो रिस्पेक्ट, एंड n number of duties. Then we have the single citizenship. इस पे भी अलग से एक टॉपिक आएगा, वीडियो आएगी, जिसमें सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है कि सिंगल सिटीजनशिप क्या होता है, किसको दी जाती है, क्या कोई पर्सन टू सिटीजनशिप ले सकता है कि नहीं, डबल सिटीजनशिप हो सकती है कि नहीं, वो बताया सब इसमें जाएगा। सो दिस इज ऑल द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट स्लाइड में आई विल टॉक अबाउट द प्रियम्बल पार्ट, जिसमें हम प्रियम्बल के बारे में पढ़ेंगे, प्रियम्बल के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे, क्या कंटेन करता है प्रियम्बल, इज प्रियम्बल अ पार्ट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, जिसमें 2 केसेस हमने पढ़ने हैं, केशवानंदा भारती केस और आपका एक और है री बेरूबरी केस, ये दोनों केस हमने पढ़ने हैं। ओके, सो इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज डू सब्सक्राइब, like and share with your friends. Thank you.